Hello dear students, today again I am here with some another tense. So before we go further, let us recall what we learned in our previous video. Dear students, as you all know, we discussed about simple present tense in our previous video. So what is simple present tense? What is the use of simple present tense? So simple present tense is used to talk about daily routine, habits, universal truth and facts. When we use simple present tense, when we are expressing our daily routine, habits, universal truth or fact. Now what is the form of simple present tense? So we can use subject first, then verb plus object. I write a letter. I is a subject, write it's a verb and a letter it's a object. So this is the form of assertive sentence in simple present tense. Now what is the formation of negative sentence? Subject plus do does plus not plus verb plus object. It means I do not write a letter. I do not write a letter. It's a negative sentence. When we are formatting a negative sentence, we use subject first, then do does plus not, verb and object. It's a negative sentence. Do I write a letter? Do I write a letter? Do सब्जेक्ट में आई आ गया, वर्ब में राइट हो गया, ऑब्जेक्ट में क्या होगा अ लेटर. सो इट्स अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन, डू आई राइट अ लेटर? सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ लेट अस गो अहेड विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस to talk about action in the present or things that are going on or happening now. When we use present continuous tense, when we are expressing or when we are talking about things which are going on, जो अभी हो रहा है, right now, happening now, जो अभी चल रहा है, right? So when we talk about the things which is going on, जो अभी हो रहा है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, एट दैट टाइम वी कैन यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस का फॉर्म क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब विथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. एज यू ऑल नो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब: मेन वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पास्ट participle. Here we can use verb with ing. क्यों हम ing यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज हमें क्या दिखाना है कि एक्शन अभी हो रहा है, इट्स गोइंग ऑन और इट्स हैपनिंग नाउ. सो वी कैन यूज verb with ing. Here are some basic knowledge. हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स जो है इज एम आर, वो हम कहाँ और किसके साथ यूज़ करते हैं? सो आपको पता ही है आई के साथ क्या होगा? एम. ही शीट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज. एंड यू विथ ही के साथ हम लोग यूज़ करेंगे आर. ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट नोट. इफ द वर्ब एंड्स विथ ई, वी हैव टू रिमूव ई. वी हैव द वर्ब्स विथ विच एंड्स विथ ई. कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ई के साथ एंड होते हैं. So in present continuous tense, when we are formatting a sentence and at that time we are using a verb which ends with E. So at that time we have to remove E and we replace E with ing. हमें directly अगर मैं ऐसा लिखूँ COME come ing, so it's a wrong, right? We have to remove E and we add ing. So this is the correct verb. Same here, RIDE ride. तो यहाँ पे मैंने ई रिमूव करके ing लगाया है. सो ये आपको
याद रखना रहेगा। नाउ सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस। आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम। मम इज बेकिंग अ केक। You are singing too loudly. So I am learning how to swim. मैं अभी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ कि मुझे कैसे तैरना है। Mom is baking a cake. Mom अभी अभी केक बना रही है। The process is going on. The process of baking cake is going on. You are singing too loudly. आप बहुत ज़ोर से गाना गा रहे हो। जो एक्शन अभी चल रहा है। यू कैन ऑल्सो यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू हैव प्लानिंग टू डू इन फ्यूचर। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू सी द एक्शन विच इज गोइंग ऑन, टू शो द एक्शन, राइट, विच इज हैपनिंग नाउ। बट एट द सेम टाइम वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स यू हैव प्लानिंग। हमने ऑलरेडी प्लान कर दिया है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। सो वो एक्शन दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। आई एम स्टार्टिंग पियानो लेसन सून। जिम्स पेरेंट्स आर टेकिंग हिम टू द गार्डन नेक्स्ट वीक। सो हियर आई एम स्टार्टिंग पियानो लेसन सून। सो वो ऑलरेडी प्लान हो चुका है कि मैं इस मंथ से या इस डे से पियानो लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। सो इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस। एंड जिम्स पेरेंट्स आर टेकिंग हिम टू द गार्डन नेक्स्ट वीक। जिम के जो पेरेंट्स हैं वो उसे नेक्स्ट वीक में गार्डन लेके जाने वाले हैं। सो इट्स ऑलरेडी प्लानेड, प्री प्लानेड हो चुका है। Same way, if we are formatting negative sentence in present continuous tense, we can use subject, am is are, plus not, plus verb with ing and object. Here are some examples. I am not learning how to swim. Mom is not baking a cake. You are not singing too loudly. सो ये वही सेंटेंस है जो हमने असर्टिव फॉर्म में बनाए थे और वही हमने नेगेटिव फॉर्म में उसे ट्रांसफॉर्म किया है। सो इट्स अ नेगेटिव सेंटेंसेस। इन नेगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज सब्जेक्ट फर्स्ट, देन एम इज आर, प्लस नॉट, प्लस वर्ब विथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज एम इज आर फर्स्ट, plus subject, plus verb with ing and object. So here is first sentence. Am I learning how to swim? क्या मैं सीख रही हूँ कि मुझे कैसे तैरना है? Are you singing too loudly? आप ही ज़ोर से गाना गा रहे हो? Is mom baking a cake? मम केक बना रही है। So it's a set interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? व्हेन वी आर आस्किंग समथिंग टू समवन, व्हेन वी आर क्वेश्चनिंग समवन। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा? एम इज आर फर्स्ट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब विथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट अस रिकॉल इट अगेन। We use present continuous tense when we are talking about the action which is going on. जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। We can form the sentence with the subject first, am is are, verb with ing plus object. In negative sentence we can use subject first, am is are, plus not, plus verb with ing and object. If we are formatting interrogative sentence, we can use am is are first, subject, verb and object. Okay dear students, so this is all about present continuous tense. I hope it's clear now in your mind. Now what's your work? Now your work is to do
is to format 10 sentences related to present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके आपको 10 सेंटेंस फॉर्मेट करना है. फर्स्ट यू हैव टू फॉर्मेट असर्टिव सेंटेंस, देन टर्न इनटू नेगेटिव सेंटेंस एंड टर्न इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस आल्सो. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. स्टे सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग. थैंक यू.